Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, let we translate page number 38. I left him babbling like a foolish child. मैं से किसी अहमक बच्चे की तरह बड़बड़ाता हुआ छोड़कर रुखसत हुआ. Babbling बड़बड़ाता हुआ. Below, as I stood whistling for a cab, a man came on me through the fog. नीचे जबकि मैं घोड़ा गाड़ी के लिए सीटी बजा रहा था, धुन में से निकल कर एक आदमी मेरे पास आया. हाउ इज़ मिस्टर होम्स सर, ही आस्क्ड. मिस्टर होम्स कैसे हैं जनाब, इसने पूछा. It was an old acquaintance, Inspector Moulton of Scotland Yard, in his official clothes. ये एक पुराना वाकिफ़ था. स्कॉटलैंड यार्ड का इंस्पेक्टर मोल्टन अपने सरकारी कपड़ों में. He is very well, he is very ill, I answered. He is very ill, I answered. वो बहुत बीमार है, मैंने जवाब दिया. He looked at me with a strange expression that seemed almost like a smile. इसने एक अजीब से तासुर के साथ मेरी तरफ देखा जो कि लगभग एक मुस्कुराहट जैसा था. The cab had driven up, so I thought no more of it and I left him. घोड़ा गाड़ी पास आ गई थी, इसलिए मैंने इसके बारे में मज़ीद न सोचा और इससे रुखसत हो गया. Lower Berkeley Street proved to be a line of fine houses. लोअर बर्ग स्ट्रीट उम्दा घरों की एक कतार साबित हुई. लोअर बर्ग स्ट्रीट proved to be a line of fine houses. The particular one at which my cabman pulled up had old-fashioned iron railings, a massive folding door and shining bracework. जिस ख़ास घर पर मेरा कोचवान रुका, वो पुराने तर्ज के आहनी जंगले, एक बहुत बड़े तहदार दरवाज़े और पीतल के चमकते हुए आराइशी काम का हामिल था. All was in keeping with the solemn butler who went to tell his master of my arrival. ये सब एक संजीदा सूरत रकाबदार के ऐन मुताबिक था जो अपने आका को मेरी आमद के बारे में बताने गया. I heard murmuring, he can come in the morning or he can stay away. My work must not be hindered. मैंने बड़बड़ाहटें सुनी, वो सुबह आ सकता है या वो दूर रह सकता है, मेरे काम में खलल-अंदाज़ी नहीं होनी चाहिए. I thought of Holmes tossing upon his bed of sickness and counting the minutes. Perhaps I thought of Holmes tossing upon his bed of sickness and counting the minutes. मैंने बिस्तर अलालत पर करवटें बदलते और शायद इस वक्त तक के लिए घड़ियां गिनते हुए होम्स को देखा. Perhaps until I could bring help to him, जबकि मैं इसके लिए मदद ला सकूं. His life depended upon my promptness. मेरी मुस्तादी पर इसकी ज़िंदगी का दारोमदार था. Before the apologetic butler had delivered his message, I had pushed past him and was in the room. मेरी मुस्तादी पर इससे पहले कि माज़रत ख्वाह रकाबदार इसका पैगाम पहुंचा सकता, मैं इसके पास से गुज़र चुका था और कमरे में दाखिल हो चुका था. What is this? Culverton Smith cried in a high, screaming voice. What is the meaning of this intrusion? ये क्या हरकत है? कल्वर्टन स्मिथ बुलंद थी की आवाज़ में चिल्लाया. इस दखलंदाजी का मतलब क्या है? क्या मैंने आपको पैगाम नहीं भिजवाया था कि मैं कल सब आपसे मिलूँगा? Don't I send you word that I would see you tomorrow morning? Don't I send you word
that I would see you tomorrow morning? क्या मैंने आपको पैगाम नहीं भिजवाया था कि मैं कल सुबह आपसे मिलूँगा? I am sorry, said I, but the matter cannot be delayed, Mr. Sherlock Holmes. I am sorry, माफ़ी चाहता हूँ. I am sorry, said I, मैंने कहा, but the matter cannot be delayed, लेकिन मामले को मौखर नहीं किया जा सकता. Mr. Sherlock Holmes, Mr. Sherlock Holmes. The mention of my friend's name had an extraordinary effect upon the little man. मेरे दोस्त के नाम के तज़किरे ने मुख्तसर क़ामत के आदमी पर गैर मामूली असर डाला. The look of anger passed in an instant from his face. गुस्से का तासुर एक लम्हे में इसके चेहरे से गायब हो गया. His features became tense and alert. इसके खदोखाल कशीदा और चौकन्ने हो गए. Have you come from Holmes? he asked. क्या आप होम्स की तरफ से आए हैं? इसने दरियाफ्त किया. He is desperately ill, that is why I have come. वो बहुत बीमार है इसलिए मैं आया हूँ. The man motioned me to a chair and turned to resume his own. आदमी ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और अपनी कुर्सी पर दोबारा बैठने के लिए मुड़ गया. As he did so, I caught a glimpse of his face in the mirror over the mantelpiece. जब वो ऐसा कर रहा था, मैंने अंगेठी पर लगे हुए आईने में इसके चेहरे की झलक देखी. I could have sworn that it was set in a malicious smile. मैं कसम खा कर कह सकता हूँ कि इस पर एक कीना भरी मुस्कुराहट जमी हुई थी. मैं कसम खा कर कह सकता था कि इस पर एक कीना भरी मुस्कुराहट जमी हुई थी. Yet I must have been mistaken, for he turned to me an instant later with genuine concern upon his features. फिर भी ज़रूर मुझे गलत फहमी हुई होगी, क्योंकि एक लम्हे बाद वो अपने चेहरे पर हकीकी तशवीश लिए मेरे तरफ मुड़ा. I only know Mr. Holmes through some business dealings which we have had, but I have every respect for him. मैं मिस्टर होम्स को महज इन चंद कारोबारी मामलात के हवाले से जानता हूँ जो हमारे दरमियान हुए थे, मगर मैं इसका मुकम्मल एहतराम करता हूँ. It was on account of your special knowledge that Mr. Holmes desired to see you. It was on account of your special knowledge. ये आपके साथ मखसूस इल्म होने की बिना पर मिस्टर होम्स डिज़ायर्ड, मिस्टर होम ने ख्वाहिश ज़ाहिर की, टू सी यू कि आपसे मुलाकात करे, आपको देखे. ही थॉट दैट यू आर द वन मैन इन लंदन. उसका ख़्याल था कि लंदन में आप अकेले एक आदमी ही है. हु कुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद कर सकता है. बिकॉज ऑफ योर नॉलेज ऑफ ईस्टर्न डिजीज़, आपके ईस्टर्न डिजीज़ का इल्म रखने की वजह से. मिस्टर कलवर्टन स्मिथ स्माइल्ड प्लीजेंटली. कलवर्टन स्मिथ खुशगवार अंदाज में मुस्कुराया. एंड पिक्ड अप हिज केप, और अपना केप उठाया. आई विल कम विद यू एट वंस, मैं आपके साथ फ़ौरन जाऊँगा. ही सेड, उसने कहा. आई रिमेंबर्ड होम्स कमांड, आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट, सेड आई. मैंने कहा, मुझे होम का हुक्म याद है, मेरा दूसरा काम है. वेरी गुड, बहुत अच्छा. आई विल गो एलोन, मैं अकेले जाऊँगा. यू कैन रिलाई अपॉन माई बीइंग देयर, आप मेरे वहाँ मौजूद होने पर एतबार कर सकते हो. विद इन हाफ एन आवर एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में. It was with a sinking heart that I re-entered Holmes' bedroom. डूबते हुए दिल के साथ मैं होम्स की ख्वाबगाह में दोबारा दाखिल हुआ. To my enormous relief, although his appearance was as ghastly as ever, he seemed greatly improved. बेहद सुकून महसूस हुआ, मुझे बेहद सुकून महसूस हुआ, अगरचे इसकी हालत
बेहद वहशतनाक थी, ताहम वो बहुत बेहतर नज़र आ रहा था। ही इज़ कमिंग, आई टोल्ड हिम, वो आ रहा है, मैंने उसे बताया। एडमायरेबल वेटसन, यू कैन नाउ डिसअपीयर फ्रॉम द सीन, देयर इज़ जस्ट रूम बिहाइंड द हेड ऑफ माई बेड वाटसन। काबिल तहसीन, वाटसन अब तुम मंज़र से गायब हो सकते हो, मेरे बिस्तर के सरहाने वाली साइड, मेरे बिस्तर के सरहाने वाले साइड के पीछे खातिर ख्वाह जगह मौजूद है वाटसन। माई डियर होम्स, आई प्रोटेस्टेड, मेरे अज़ीज़ होम्स, मैंने एहतजाज किया। आई फेयर देयर इज़ नो अल्टरनेटिव वेटसन, वेटसन कमरे में छुपने की और कोई जगह नहीं है। द रूम डजंट हैव एनी अदर प्लेस ऑफ कंसीलमेंट, कमरे में छुपने की और कोई जगह नहीं है। देयर आर द व्हील्स, देयर आर द व्हील्स, देयर आर द व्हील मीन्स पहियों की आवाज़ आ रही है। वेटसन क्विक मैन एंड डोंट बज, वट एवर हैपन्स जस्ट लिसन विद ऑल योर ears, पहियों की आवाज़ आ रही है वेटसन, जल्दी करो भाई और हिलना मत, जो कुछ भी हो जाए पूरे गौर से सुनते रहना। Then in an instant his sudden access of strength departed and he drifted into the low, vague murmurings of a semi-delirious man. फिर एक लम्हे में इसके अचानक ऊद कर आने वाली क़ुव्वत गायब हो गई और वो नीम सरसामी कैफियत के शिकार किसी इंसान के जैसी धीमी धीमी मुबहिम बड़बड़ाहटों में मशगूल हो गया। एक्सेस ऑफ स्ट्रेंथ, एक्सेस ज़्यादती, स्ट्रेंथ ताकत, डिपार्टेड चला गया, एंड ही ड्रिफ्टेड इनटू लो, वेगू, वेगू मीन्स मुबहिम, मरमरिंग, मरमरिंग सरसराहट, ऑफ अ सेमी डिलीरियस मैन, नीम सरसामी आदमी की तरह। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। टुमारो इंशाअल्लाह आई विल ट्राई टू रीड द रिमेनिंग part of the lesson. You may try to understand. Thank you. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.